Hello everyone, myself Kushali Kathiria. Now we start a new chapter of AI. Okay, it is a third chapter, knowledge representation issue. This chapter is for the 8th semester student. Okay, so uh, this is outline for the your current semester. It means 8th semester. Chapter 3 knowledge representation issue. This chapter contain a representation and mapping of knowledge, and also this is a included approaches to knowledge representation. It means it is a technique of knowledge representation. This is a 8 chapter content. If you are in 6th semester, then your in your 6th semester this chapter is name is logical agent and first order logic. So this chapter contain this kind of topics. They are this chapter divide into two parts. First one is a logical agent, and second one is the first order logic. Logical agent contain what is a knowledge, what is a knowledge based agent, what is a Wampun world problem, okay, or algorithm, what is a logic, what is a propositional logic, okay, type of propositional logic, as well as theorem proving for propositional, okay, effective propositional model checking, as well as agent based propositional logic. It means all area of propositional logic. Okay, this is your first part, and second part contain first order logic. Okay, in this is a type of the knowledge representation: propositional logic, logical representation, semantic network, frame representation. It is a type or approaches of knowledge representation. Okay, in this video or in this chapter you have described two logic. First one is the propositional logic and second one is the first order logic. So we will discuss this kind of two approach or two technique for knowledge representation, as well as we discuss what is a knowledge, what is a knowledge representation, what is a knowledge based agent. Okay, what is the type and what is the technique for knowledge representation, as well as we discuss issue and framework for knowledge representation. This kind of the topic we will discuss in this video or this chapter. Okay, so this is your third chapter. If you are in 6th semester, then your chapter name is logical agent and first order logic, and you if you are in 8th semester, then your third chapter is a knowledge representation issue. But both chapter have a same content but different topic name. Okay, so let's start with introduction. So first we will discuss what is a knowledge. It means what is a knowledge. Knowledge is one kind of the word. Okay, so let's start with the simple terms. Okay, so what is a lot knowledge? Knowledge is a general term, simple one kind of the simple word fact. Okay, knowledge is a proposition that start with the data which is a limited utility. Okay, knowledge it means it is only one general term. Okay, जो कोई भी हम माइनर टर्म हम बोलते हैं, कॉमन टर्म हम बोलते हैं, वो है एक वर्ड है सिंपल सा, बट वो कहाँ से स्टार्ट होता है? डेटा से. डेटा इट मीन्स नॉलेज. अगर हमें कोई चीज़ का, कोई भी थिंग्स का हमें जो नॉलेज आइडेंटिफाई करना है, अगर वो हमें गेन करना है, तो हम कैसे करेंगे? स्टार्ट विथ डेटा. ओके, हमारे पास कौन सा डेटा है, वो कौन से फील्ड में से आता है, कहाँ से आता है, क्यों आ रहा है, ये सब क्वेश्चन करके हमें जो कोई भी इंटरप्ट करके हमें जो ट्रांसलेट करके जो हमें आइडेंटिफाई होता है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉलेज. सो हाउ कैन वी रीच टू अ नॉलेज? ओके, नॉलेज के पास पहुंचने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा? हमारे पास कोई कंटेंट होगा, कोई डेटा होगा. डेटा कहाँ पर स्टोर है वो इंफॉर्मेशन होगी, और वो डेटा कौन सा है वो भी हमें पता होगा. ओके, सो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो डेटा से. ओके, data is organizing or analyze the data. Okay, first thing is we have a data. Okay, after that we organizing or analyzing from the data. We understand that the data means and it becomes a information. Okay, if we apply organization or
वी आइडेंटिफाई और एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर डेटा। ओके, हमारे पास सपोज कि कोई स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है हमारे पास, उसमें से हमें आइडेंटिफाई, वो हमारा डेटा है। ओके, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी हमें कुछ पता नहीं है। हमारे पास क्या है, एक टेबल है, टेबल के अंदर अंदर क्या है, तो उसके अंदर डेटा है। किनका डेटा है, किसका डेटा है, स्टूडेंट का। ओके, तो स्टूडेंट का कौन सा डेटा है वो हमें पता नहीं है, बस हमें यही पता है कि 100 स्टूडेंट का डेटा है। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारा डेटा। बट उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, उस टेबल को हम अच्छे से क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमें उसको अच्छे से विजुअलाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। विच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स आपको पता चलेगा कि वो कॉलेज का है, स्टूडेंट का है, प्राइमरी स्कूल का है, किसका डेटा है। मतलब इट मीन्स कि इंजीनियरिंग का डेटा है, बी फार्म का डेटा है। अगर टेबल में मेंशन है तो ओके, सपोज के आपका डेटा जो है, स्टूडेंट डेटा है, वो हमारी कॉलेज का डेटा है, इंजीनियरिंग ग्रुप का। ओके, इंजीनियरिंग ब्रांच है हमारी, जो कोई भी है, आईटी, कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल, ओके, इलेक्ट्रिकल। तो आपको क्या मिला, इन्फॉर्मेशन मिली। आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली, कि आपको पता चला कि 100 स्टूडेंट है, उस वो 100 स्टूडेंट पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के डेटा है। तो वो क्या आपने क्या किया, एनालिसिस किया, और एनालिसिस करके आपने क्या आइडेंटिफाई किया, उसमें इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई की। ओके, अब आप क्या करेंगे, द इंटरप्रिटेशन और इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। ओके, इट मीन्स आपको क्या करना है, इंटरप्रिट करना है, ट्रांसलेट करना है, और आपको क्या मिलेगा, नॉलेज आइडेंटिफाई होगा। ओके, फ्रॉम द नॉलेज अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल एंड एम्बडीज विद द नॉलेज इज अ विजडम। और आपको क्या, वो एक थियरी, वो एक कोई कंक्लूजन बोलते हैं ना, वो आपके फाइनल स्टेज पर नॉलेज में से क्या मिलेगा, आपको विजडम मिलेगा। ओके, सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट यह मैंने क्या किया है कि डेटा का, इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का और विजडम का एक एक एग्जाम्पल दिया है। उस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारा डेटा को हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज और एनालिसिस करना है। ओके, सो हियर डेटा इज व्यू एज अ कलेक्शन ऑफ डिसकनेक्टेड फैक्ट। इट मीन्स अवर एग्जाम्पल इज, इट इज अ रेनिंग। ओके, इट इज रेनिंग, इट मीन्स इसे कुछ प्रूव नहीं होता है। रेनिंग, इट इज अ रेनिंग, इट मीन्स अभी बारिश आ रही है। ओके, बारिश आ रही है, अभी नहीं, बारिश आ रही है। तो उसे कोई प्रूव होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक डिस्कनेक्ट फैक्ट है। ओके, डिस्कनेक्ट फैक्ट, इट मीन्स फैक्ट है या नहीं वो हमें पता नहीं है। इट मीन्स अभी बारिश हो रही है या नहीं हो रही है वो हमें पता नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे, कि उसको वू, व्हाट, वेयर एंड व्हेन टाइप के क्वेश्चन करके। ओके, हमें क्या करना है, वू, व्हाट, वेयर एंड व्हेन, इसमें से जो कोई भी सुटेबल होगा उसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है, जो हमारा मेन सेंटेंस है, हमारा जो डेटा है उसको। ओके, तो हम क्या करेंगे, वेयर where is a raining, when is a raining, okay, which this kind of the question we will ask to the particular एग्जाम्पल। ओके, तो हमें क्या मिला है, तो हमें आइडेंटिफाई हुआ है द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्रीज एंड देन इट इज स्टार्ट रेनिंग। हमें क्या पता चला कि टेम्परेचर डाउन हुआ है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है 15 डिग्री तक, इसीलिए क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। ओके, हमें क्या मिली, इंफॉर्मेशन मिली। कहाँ से, डेटा से इंफॉर्मेशन मिली। क्यों मिली, क्योंकि हमने उसको क्वेश्चन किया है। क्यों किया है, उसकी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका फैक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या क्वेश्चन किया, वू, वेट, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। ओके, दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन, मतलब ये वाले जो हमने क्वेश्चन किए हैं कि कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है। ओके, क्यों हो रही है नहीं, कहाँ हो रही है और कब हो रही है। ओके, ये वाला हमने क्वेश्चन किया, इसीलिए क्या मिला हमें, ये आंसर आइडेंटिफाई हुआ कि द टेम्परेचर ड्रॉप 100 डिग्री, उसका रीजन आइडेंटिफाई हुआ। इट मीन्स वो हमें पता चला। ठीक है, इट मीन्स हमारी इंफॉर्मेशन हमें मिली। आफ्टर दैट नॉलेज, अब हमें क्या करना है, नॉलेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, हाउ। ओके, हाउ इट इज इट पॉसिबल। ओके, हाउ हाउ पॉसिबल, कई रीते कैसे वो पॉसिबल है, कैसे वो मुमकिन है। तो हमें क्या करना है, तो उसका आंसर हमें मिला है कि टेम्परेचर डाउन क्यों हुआ,
इसकी वजह क्या है, ओके तो वो हमें क्या मिलेगी, इफ द ह्यूमिडिटी इज अ वेरी हाई एंड टेम्परेचर ड्रॉप सब्सटेंटली, ओके देन एटमोस्फियर इज अनलाइकली टू होल्ड द मॉइस्चर, सो इट इज अ रेनी। क्या हुआ, ह्यूमिडिटी हाई हो गई, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया और एटमोस्फियर में क्या हुआ, मॉइस्चराइज आ गया, ओके तो क्या हुआ, रेन हो गया। ओके दिस इज अवर नॉलेज। हमें क्या आइडेंटिफाई, क्या क्या आइडेंटिफाई हुआ है, ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, एटमोस्फियर इज मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ड्रॉप। तो हमें नॉलेज हमारा कौन सा है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड एटमोस्फियर। ओके नाउ अवर विजडम इज, ओके नाउ अवर प्रिंसिपल क्या वर्क करता है कि उसके जो कोई भी फैक्ट है वो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। कैसे करेंगे, वाई नाम का क्वेश्चन करके, वाई क्यों हुआ ये सब, ओके सो दिस इज अवर आंसर। ओके कि टेम्परेचर है वो डाउन हुआ है, जो इवोरेपरेशन है, ओके जो कोई भी हमारी पानी में से जो कोई भी पानी में से बारिश होती है, ठीक है तो उस पर पहले क्या होता है, धुआं होता है, वो धुआं ऊपर जाता है और वहां से क्या होता है, बारिश आती है, ठीक है करंट में से। तो ये वाला जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमें क्या मिला है, विजडम। इट मीन्स डेटा हमारे पास क्या था, डेटा हमारे पास यही था कि रेनिंग है, और हमारा विजडम इट मीन्स हमारा प्रिंसिपल क्या आइडेंटिफाई होकर आया है, कि उसकी वजह आइडेंटिफाई होकर आई है, कहाँ कहाँ पर से, नॉलेज, और नॉलेज कहाँ से आया, इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन डेटा में से। इट मीन्स we have a store lots of data, from the data we identify the wisdom from the particular data. Okay so this is a knowledge only. Okay now why we need a knowledge representation, okay this is the only we have discussed only term of the knowledge, what is a knowledge. Okay now we discuss why we need knowledge representation. Okay so what is a knowledge representation, humans are best at understanding, reasoning and interpreting knowledge. Human know things which is a knowledge, as per their knowledge they perform various action in the real world, but how machine do all these things comes under knowledge representation and reasoning. ओके हमें क्या यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ ना कि रेनिंग हो रहा है, तो हमने क्या मिला, आइडेंटिफाई करके लाए कि ये वाले रीजन है इसीलिए यहाँ पर बारिश हो रही है। पर मशीन को तो पता नहीं है ना, वो हमारी क्या है, हमें क्यों पता चला, क्योंकि वो हमारी कॉमन सेंस है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी रीजनिंग है। ओके हम इंटरप्रिट करते हैं, हमारे जो नॉलेज हमारे पास, वो छोटा सा बच्चा होगा तो वो एक दो बार गिरेगा तो उसे पता चलेगा ना कि वहां पर गड्ढा है, तो क्या होगा, वो अपने नॉलेज में अपडेट करेगा। इट मीन्स उसे पता है कि वो चल रहा है, तो चलते चलते वो अगर आगे जा रहा है और गड्ढा मिलेगा, डिग डिग इट मीन्स गड्ढा, तो छोटा बच्चा क्या करेगा, वहां से वो का तो जंप कर लेगा, का तो वो अपना जो कोई भी पाथ है वो मूव कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। बट मशीन को ये पता नहीं है, वो हर बार वहां पर जाएगा अगर उसको कोई चीज सिखाने वाला नहीं है। इट मीन्स मशीन जा रही है, ठीक है, एक एक जगह बच्चा जा रहा है और दूसरी जगह मशीन जा रही है। मशीन जा रही है, वो गड्ढे गड्ढे को देखकर वो ये नहीं सोचेगा कि मैं यहाँ गिरूंगा तो मुझे लगेगी, वो क्या करेगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा और गड्ढे में गिर जाएगा। ओके बट बच्चा क्या करेगा, एक बार जाएगा गिरेगा, दूसरी बार वो क्या करेगा, वहां से वो साइड होकर जाएगा, ठीक है, ताकि वो गड्ढे में ना गिर सके। अगर मशीन उसकी जगह हो तो मशीन क्या करेगी, उसको पता ही नहीं है कि जंप करना है, वो वहां पर मुझे पाथ मूव करना है, वो उसको पता ही नहीं, वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट उसमें गिर जाएगा। हमें क्या करना है, मशीन को हमें लर्न कराना है दिस काइंड ऑफ द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। इट मीन्स के एआई इट मीन्स लर्न, ओके लर्न एंड थिंक्स। ओके मशीन को हमें सिखाना है, लर्निंग कराना है, और उसको ह्यूमन माइंड जो सोचता है ना, वो हमें क्या करना है, उसको अंडरस्टैंड कराना है। सो we need a knowledge representation it means interpretation, we have knowledge but machine wants to knowledge representation। क्यों, क्योंकि उसको हमारी लैंग्वेज और हमारा जो कोई भी लैंग्वेज है वो क्या बोलता है,
वो फर्स्ट ऑर्डर लैंग्वेज बोलता है, ओके। और हम क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर लैंग्वेज बोलते हैं, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज हम बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, समझते हैं, बाइनरी वाली। तो उसको क्या करना होता है, उसको सिखाना होगा बाइनरी में। तो उस बाइनरी में सिखाने के लिए हमें क्या आइडेंटिफाई करना होगा, और हमें क्या चाहिएगा, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। सो इसीलिए हमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होगी। सो दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, व्हाई वी नीड अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। Knowledge representation and reasoning is the part of the AI which concerned with AI agent thinking and how thinking contribute to intelligent behavior of agent. Agent, it means machine, okay. It is responsible for representing information about the real world so that the computer can understand, okay. So this one is the, so computer can understand and can utilize this knowledge to solve the complex real world problem such as a diagnosis, a medical condition, or communicating with human in natural language, okay. Our AI application we have a talk about in our first chapter, okay. एप्लीकेशन ऑफ एआई, इट मीन्स मेडिकल फील्ड में उसका यूज़ होता है, नेचुरल लैंग्वेज में यूज़ होता है, रिकॉग्नाइजेशन में यूज़ होता है, जो ह्यूमनली गेमिंग में यूज़ होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एआई चाहिए। एआई को हमें क्या करना होगा, एआई चाहिए, इसीलिए हमें ऐसी मशीन बनानी होगी जो हमारी बात समझ सके। सो इसीलिए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करना है, ओके। इफ it is also a way which describe how we can represent knowledge in AI. Knowledge representation is not just storing data into some database, but it is also enables an intelligent machine to learn from that knowledge and experience so that it can be behave intelligently like a human, okay. You have already learned about database, data mining, okay. One subject of 8 semester student have already learned about data mining, and 6 semester student you have um, currently learn about data mining. So in data mining, what is a data mining, it means को उसमें डेटा माइनिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंट और मशीन लर्निंग, ओके। यू हर्ड दिस काइंड ऑफ द वर्ड मशीन लर्निंग। तो उसमें क्या होता है कि आपको कंप्यूटर को सिखाना है कि ये एप्पल है, ग्रीन एप्पल है, येलो रेड एप्पल है, ओके। उसको अलग अलग शेप में उसको क्या बताना है, उसको दिखाना है कि ये वाला एप्पल है आप सीखो, ये वाला एप्पल है आप सीखो। और उसको क्या बोलना है कि ये कौन सा वो आफ्टर, मतलब एक बार आपने दिखाया, उसने क्या किया, कुछ अपने माइंड में स्टोर किया, कुछ उसने निकाल दिया। इट मीन्स आपने 100% दिखाया था, पर उसने क्या किया, 50% उसने अपने माइंड में स्टोर किया। वापस से आपने दिखाया तो उसने फिर से कुछ स्टोर किया, ओके। तो बाद में आपने 10 बार उसको बताया है, ओके, 10 बार उसको बताया है कि ये वाला एप्पल है, एप्पल है, एप्पल है। आफ्टर दैट आपने ग्रीन एप्पल बताया उसको, ओके। ग्रीन एप्पल है, ब्लैक एप्पल है, वो आपने उसे बताया। तो वो क्या इंटरप्रेट कर पाएगा, अगर वो कर पाएगा तो उसने क्या किया है, लर्न अच्छे से किया है। अगर नहीं किया है तो वो क्या है, अभी इंटेलिजेंट नहीं है, उसको और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो हियर this sentence is represent that this is knowledge representation is not just storing data in some database, it is also enables an intelligent machine to learn from that knowledge, okay. What is a knowledge, our apple is a knowledge, okay. So knowledge and experience so that it can behave intelligently like a ह्यूमन, ओके। ह्यूमन को क्या बोलेंगे, आप एक दो बार दिखाएंगे ना तो वो समझ जाएगा। अगर आप उसको ग्रीन एप्पल है, रेड एप्पल है, येलो एप्पल है, ब्लैक एप्पल है, कोई भी एप्पल आप उसे दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा ये वाला एप्पल है। पर मशीन को ऐसे नहीं समझाएगा, ओके। उसको आपको हर एक कलर का और हर एक शेप में उसको दिखाना होगा कि ये वाला एप्पल है, एप्पल है, एप्पल है। तभी वो कुछ परसेंटेज तक वो आपको आंसर दे पाएगा, लाइक 90%, 95%, ओके। वो 100% तो नहीं देगा, कभी तो वो गलत देगा ही देगा। सो from this kind of the knowledge representation they learn, and from the this kind of the experience they behave like intelligently, okay, intelligent human. So what we need to represent, okay, knowledge representation में represent करने के लिए कौन कौन सी थिंग्स की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इट मीन्स
all the fact about the object in our real world. Okay, what is an event? Event, it means events are the action which occur in our real world. Okay, what is a performance? Performance, it is a described behavior which involves knowledge about how to do things. Okay, events like performance, it means which kind of the thing you do. Okay, this is a performance. What is a metadata? Metadata metadata it means data about information about data. So what is a meta knowledge? Meta knowledge is a knowledge about what we know, which kind of thing you know. This is a knowledge. Okay, what is a fact? Fact are the truth about the real world and what we represent. Okay, fact it means always true. जो कोई भी सेंटेंस है वो क्या होगा, अगर ट्रू है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, एज अ फैक्ट आप उसको बोल सकते हैं. व्हाट इज अ नॉलेज बेस्ड? नॉलेज बेस्ड इट मीन्स इट इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द नॉलेज बेस्ड एजेंट. इज अ नॉलेज बेस्ड, इट इज अ रिप्रेजेंट एज अ KB. Okay, here sentences are used as a technical term, not identical with English language. Okay, the knowledge is a group of the sentences. Sentences is, it means not a English language. Okay, but it is a technical word. Okay, what is a knowledge? Knowledge is awareness of familiarity gained by experience of fact, data, and situation. So this kind of the thing, or this kind of the things are used for the representation of knowledge. Okay, so we need this kind of the things. Last one is framework. What is a framework, and why we need a framework of the knowledge representation? Because computer required a well defined problem. Okay, computer required a description of problem. Okay, उसको आप briefly बता दोगे कि ये वाला ए है, ए वाला बी है, और वो दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है तो क्या होगा, तो वो समझ नहीं आएगा. उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, उसको क्या चाहिए था, वो उसको डिस्क्रिप्शन में वो जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको वो डिस्क्रिप्शन में जाएगा. आफ्टर दैट वो क्या करेगा, उसको वो इंटरप्रेट करेगा और उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करेगा. तो अगर हम इनफॉर्मल वर्ड में बोले तो हमें क्या पता चलता है कि प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करते हैं, उस प्रॉब्लम का हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और उसको सॉल्यूशन ले आते हैं. बट कंप्यूटर लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हम क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. दिस काइंड ऑफ द थिंग, यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग. ओके, फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन they generate knowledge representation. Okay, from the representation they compute. Okay, वो क्या करेगा, कंप्यूट करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा. वो आउटपुट क्या होगा, बाइनरी लैंग्वेज में होगा. उस बाइनरी लैंग्वेज में वो इंटरप्रेट करेगा और उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करेगा. ओके, रिप्रेजेंटेशन एंड आउटपुट इज अ फॉर्मल इट मीन्स बैकग्राउंड में जो हो रहा है ना वो वाला, कि हम जो बोलते हैं कि हम जो देख नहीं सकते, कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी में क्या करता है, वो वाला. और इनफॉर्मल इट मीन्स जो हमें, सपोज कि हमें कोई सी प्रोग्राम लिखा है. ओके, सी प्रोग्राम हमने लिखा है, सपोज कि हमने समेशन का सी प्रोग्राम लिखा है. ए इज इक्वल टू बी प्लस सी. ओके, सम ऑफ टू नंबर्स. ओके, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 10. ओके, सो जब हम कंपाइल करते हैं तो क्या करेगा, वो अपना कंपाइल एक एक लाइन को क्या करेगा, डिबग करेगा. डिबग इट मीन्स रिप्रेजेंट करेगा, एक एक लाइन को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा. आफ्टर दैट वो क्या करेगा, कंप्यूट करेगा. कंप्यूट करने के बाद वो क्या ले आएगा, उसकी मेमोरी में ए इज इक्वल टू बी प्लस सी का आंसर ले आएगा और उसको क्या देगा, इंटरप्रेट करने के बाद हमें वो डिस्प्ले होगा. बट हमें बैकग्राउंड की प्रोसेस तो दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए वो वाली फॉर्मल. और इनफॉर्मल इट मीन्स जो हम देख सकते हैं ब्लैक स्क्रीन में आउटपुट, वो वाला. सो दिस इज अ फ्रेमवर्क फॉर द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. ओके, so in this video we discuss two terms only. First one is the what is a knowledge and what is, why we need a knowledge representation. Okay, knowledge representation is for the only for machine. Okay, not for human. Why machine? Why for machine? Because the machine do all things come under the knowledge representation and रीजनिंग. ओके, मशीन को क्या करना है, इंटेलिजेंट करना है, उसको रीजनिंग सिखाना है, अंडरस्टैंडिंग सिखाना है. इसलिए हमें क्या करना है, उसको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की जो कोई भी रूल है वो क्या करेंगे, हम उसको आइडेंटिफाई करवाएंगे. ठीक है,
So in so now in next video we discuss a knowledge based agent in AI. Okay, so thank you.